Say everyone, question number 6. So in question number 6, you have x equals to cos inverse 1 by square root of 1 plus t square and y equal to sin inverse t by 1 plus t by root over 1 plus t square. तो ध्यान देना एक बार सब कोई. You know, you have studied this thing in number 6 and 7, that if you have inverse trigonometric function and the algebraic expression is in very complex form, sin inverse of जो algebraic function होता है, expression होता है, अगर वो बहुत complex form में है तो हम लोग को डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए. पहले हम लोग को उस एक्सप्रेशन पे जो algebraic expression है उसमें हम लोग को appropriate trigonometric functions को substitute करके पहले reduce करना चाहिए and then we should move forward to differentiate. पहले हम लोग को उसको simplify करके, कैसे simplification? By substituting the appropriate function, appropriate trigonometric function, उसको पहले reduce करना चाहिए and then we must differentiate. तो अगर रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे बताओ तो एक बार हम लोग को t के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? tan थीटा, और यहाँ पे भी t के जगह पे tan थीटा ही पुट करना चाहिए. तो हम लोग सेम चीज पुट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो फिर ये हो जाएगा x equals to cos inverse 1 divided by root over 1 plus tan square theta. Now what is 1 plus tan square theta? It is equal to sec square theta, and sec square theta का square root will be equal to sec theta. Now what is 1 by sec theta? It can be written as 1 by sec theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos theta. And cos inverse of cos theta equals to theta. लास्ट में जब हमने रिड्यूस कर दिया तो वापस से हम लोग थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ t. So this is x equal to tan inverse t. Now let's see this part. इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो y हो जाएगा sin inverse of tan theta divided by 1 plus tan square theta. We can write tan theta as sin theta by cos theta. और ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि 1 plus tan square theta मतलब ये पार्ट रिड्यूस होके sec थीटा आ जाएगा. तो sec थीटा को हम लोग 1 by cos थीटा लिख सकते हैं. समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ? रूट ओवर 1 plus रूट अंडर 1 plus tan square थीटा is equal to sec थीटा, जिसको हम लोग 1 by cos थीटा लिख सकते हैं. cos थीटा gets cancelled and we have sin inverse of sin थीटा. फाइनली हम थीटा के जगह पे tan inverse t रिप्लेस करेंगे. Now let us differentiate both separately. You know you have to differentiate how? You have to differentiate. Everyone, बताओ तो कैसे differentiate करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन? इसको कैसे differentiate करेंगे बताओ? Yes. क्या मतलब x को with respect to क्या differentiate करेंगे? t. t, correct. Are we differentiating x with respect to t? So ये हो जाएगा dx by dt equals to 1 by 1 plus t square. और ये हो जाएगा dy by dt equals to 1 by 1 plus t square. So can you tell me at the end dy by dx, which is equal to dy by dt by dx by dt, is how much? It is clearly equals to what? All right, everyone. So we find that dy by dx is equal to how much? 1. Everyone, copy this. Question number 7 now. Question number 7 is x equal to square root of a to the power sin inverse t
and we have y equal to minus a and y equal to a to the power cos इनवर्स की अंडर स्क्वायर रूट, ये क्वेश्चन। तो मैं इसके बाद जस्ट ये वाले सम के बाद मैं नंबर 9 पहले बताऊंगा, ठीक है? इस सम के बाद नंबर 9, बिकॉज ये रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए दोनों। और हम लोग को यहाँ पे शो करना है, हम लोग को यहाँ पे शो करना है कि dy by dx is minus y by dx, ये हम लोग को शो करना है, ठीक है? मतलब हम लोग को जो dy by dx का जो रिजल्ट है वो हम लोग को लाना है इन टर्म्स ऑफ y and x। तो ये सम को सॉल्व करने का दो वे है, देखो ध्यान से। पहला मेथड है लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि हम लोग को x के टर्म्स में चाहिए और y के टर्म्स में, तो स्क्वायर कर लिया मैंने ये सोच के कि आगे डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा अगर वो x में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा हूं सुनना ही पड़ता है। लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t फर्स्ट। हम लोग दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा ddt ऑफ x स्क्वायर और राइट साइड में हो जाएगा ddt ऑफ a to the power sin inverse t। Now what is ddt of x square? Can you tell me what is ddt of x square? ddt of x square, tell me. 2x into dx by dt. It will be 2x into dx by dt because हम लोगों ने x को t अज्यूम कर लिया, ये ddt है तो x को t अज्यूम कर लिया और उसको फर्दर डिफरेंशिएट कर लिया। अब बताना तुम मुझे what is ddx of a to the power x? You all know that it is a to the power x into log a base e. So what is ddt of a to the power t? It is a to the power t into log a base e. All right. अगर ddx of a to the power x is a to the power x into log a, so what will be ddt of a to the power t? It will be a to the power t into log a. So what is ddt of a to the power sin inverse t? सबसे पहले हम लोग को sin inverse t को अज्यूम करना पड़ेगा पहले, ठीक है? ddt of a to the power t के जगह पे sin inverse t है, तो पहले इसको अज्यूम करके और डिफरेंशिएशन पहले कंप्लीट करो। तो अगर हम डिफरेंशिएशन कंप्लीट करें तो ये हो जाएगा a to the power sin inverse t, ठीक है, into log a, that is a itself, here also we have a only, and then further differentiation of sin inverse t. So we have dy by dt equals to 2x इधर आ जाएगा to log a, 2x डिनोमिनेटर में आएगा, राइट साइड के डिनोमिनेटर में, and what is ddt of, sorry not ddx, what is ddt of sin inverse t? It is 1 by root under 1 minus t square. now देखो हम लोग को जो आंसर है वो y और x के टर्म्स में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, a to the power sin inverse t के जगह पे, a to the power sin inverse t के जगह पे हम लोग x स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे, a to the power sin inverse t के जगह पे x स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर रिप्लेस कर दें तो फिर ये सिंप्लीफाई होके dx by dt आ जाएगा x into log a, x into log a divided by 2 times root over 1 minus t square। तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इतना लाया। अब सबको ध्यान से सुनना चाहिए, मैंने इस वाले पार्ट को इस मतलब x इक्वल टू रूट अंडर a टू द पावर sin इनवर्स t को स्क्वायर करके सॉल्व किया। अब मैं ये वाले पार्ट को बिना स्क्वायर करके सॉल्व करूंगा, तो क्या है दोनों वे समझ में आ जाएगा। समझ में मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं हम बिना स्क्वायर करे करते हैं, अगर दिमाग में स्क्वायरिंग वाला बात ही नहीं आता है तो भी मैं वो हो जाएगा, ये हम इसको एक बार बताए थे बिना स्क्वायर किए और ये मैंने स्क्वायर करके बताया, ठीक है? ये एक मेथड। तो देखना एक बार बिना स्क्वायर किए हुए दूसरा वाला पार्ट सॉल्व। So here we have differentiating y with respect to t. So we have ddt of y on the left, ddt of
root over a to the power cos inverse t on the right. So we have dy by dt. इसका डिफरेंशिएशन पहले क्या होगा, ये रूट फंक्शन है, इस पूरा पार्ट को अज्यूम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 by 2 root a to the power cos inverse t. उसके बाद फिर a to the power cos inverse t का फर्दर डिफरेंशिएशन. Now what is dd? I'm sorry, ये मैंने x गलती से लिख दिया, ये बार-बार x लिखने का मुझे आदत बन गई, ddt होगा. What is ddt of a to the power cos inverse t? It is a to the power cos inverse t into log a and then further differentiation of cos inverse t. तो ये हो गया a to the power cos inverse t divided by 2 root over a to the power cos inverse t into log a. What is ddt of cos inverse t? Is minus 1 by root over 1 minus t. डिफरेंशिएशन एक बार खत्म हो गया, अब हम लोग को ये चीज सोचना पड़ेगा कि हम लोग को जो आंसर है dy by dx का वो y और x में टर्म चाहिए, तो इसको जितना हो सके हम लोग इसको रिड्यूस कर दें. तो देखो मैं क्या करूंगा, a to the power cos inverse t की जगह पे बताओ तो क्या लगाऊंगा. अगर y रूट अंडर a to the power cos inverse t है, अगर y का वैल्यू रूट अंडर a to the power cos inverse t है, तो बताओ तो a to the power cos inverse t क्या होगा, बता सकते हो तुम लोग? a to the power cos inverse t क्या होगा? y स्क्वायर हो गया, तो इस जगह पे y स्क्वायर लगा दो, और रूट अंडर a to the power cos inverse t क्या होगा? y. Okay, y gets cancelled, and so we find that we are getting dy by dt equals to minus y log a divided by 2 times root over 1 minus t square. So what I did, I had x equal to root over a to the power sin inverse t and y equal to root over a to the power cos inverse. तो मैंने क्या किया, ये दोनों को एक एक मेथड से सॉल्व कर दिया. तुमको जो मेथड सिंपल लगे, स्क्वायरिंग करके लगे करना, वो भी ठीक है. सिंपल और टफ का कोई बात ही नहीं, क्योंकि तुमको चेन रूल बहुत क्लियर है, तो तुमको ये मेथड भी उतना ही इजी लग रहा होगा, ये मेथड भी उतना ही इजी लग रहा होगा, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. तो मैंने क्या किया कि इसको स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर दिया, और मैंने ये सोचा कि जितना से जितना हो सके y और x में हम लोग आंसर रखें. तो फिर मैंने क्या किया, a to the power sin inverse t की जगह पे x पर लगा दिया और रिड्यूस करके दिया. यहां पे मैंने बिना स्क्वायरिंग किए हुए किया, तो लास्ट में a to the power cos inverse t था, तो उसको स्क्वायर करके y स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, and then I reduced this. Now it is very clear that if you divide, I mean, sorry, not divide, if you find out dy by dx, it is this by this. Everything will get cancelled and minus y by x will be the result. Please copy it out. See, if you think that taking log both sides लेके करें वो भी सही है, एकदम सही है, 100%. वो मैं तो बोलूंगा वो ज्यादा ही अच्छा है. थोड़ा एक दो स्टेप लॉग लेके रिड्यूस करने में टाइम लगेगा, अदरवाइज उसके बाद जो है वो सब बहुत आसान हो जाएगा. मैं तीसरा वाला बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, लॉग लेने वाला, बिकॉज आई थिंक ये सब अभी क्लियर है, तो ये लॉग लेके तीसरा मेथड भी बता के कोई फायदा नहीं है. समझ में मैंने क्या बोला, टेक लॉग बोथ साइड्स, ये रूट जो है हाफ पावर में लिखे वो सिंप्लीफाई करें, लॉग के सारे लॉज लगा के इसको सिंप्लीफाई करें. सो यू कैन ट्राई थर्ड वे आल्सो एट होम. So we find that dy by dx will be dy by dt by dx by dt. dy by dt is minus y log a by 2 root under y minus t square, and dx by dt is x log a by 2 root over 1 minus t square. तो देखो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, log a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस y by x. Now please make sure because of space I'm not writing big यहाँ पे, इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ, इस तरीके से मत लिखना, कहीं भी कोई स्टेप्स लिख दिया वैसे मत करना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से. So this is question number 7.
Now I'll teach you number 9 first and then I'll teach you number 8 because 9 and 7 दोनों जो है related questions. Okay, इसको copy कर लो पहले. So everyone note down question number 9. So question number 9 में ये show करना है कि dy by dx का जो result है it is independent of t. It is term independent of t. So everyone note down. So first of all, let me find out dx by dt and dy by dt. So I'll not, explain you like कि कैसे dx by dt आएगा और dy by dt आएगा because you all know same समीकरण बस रूट नहीं है यहाँ पे. All right. ddt of a to the power sin inverse t is a to the power sin inverse t into log a. Sin inverse t का further differentiation is 1 by root over 1 minus t square. सेम यहाँ पे भी लेके यहाँ पे जब तुम माइनस cos inverse t को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस कांस्टेंट है बाहर और इसका -1 by root over 1 minus t square. तो -1 is +1. All right everyone. देखो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ y and x. यहाँ पे अपने लोगों ने y और x में क्यों नहीं एक्सप्रेस किए. मतलब a to the power sin inverse t को x, a to the power minus cos inverse t को y, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है. क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या शो करना है, हम लोग को शो करना है कि dy by dx इंडिपेंडेंट ऑफ t. मतलब वहां पे dy by dx का जो रिजल्ट होना चाहिए उसमें t कहीं नहीं होना चाहिए. तो क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ तक ही छोड़ देते हैं. ठीक है. अब देखो ध्यान से, dy by dx will become dy by dt by dx by dt. dy by dt is a to the power minus cos inverse t into log a, and dx by dt is a to the power sin inverse t into log a by. इसको एक काम करो, रिड्यूस करो. तो देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, log a कैंसिल हो गया, बचा a to the power माइनस. मैं कुछ गलती किया है, चेक करके जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो इतना आ गया. ठीक है. अब देखो क्या बचा, a to the power minus cos inverse t by a to the power sin inverse t. इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ देखो. इसको a to the power minus sin in cos inverse t minus sin inverse t. so it is a to the power minus cos inverse t minus sin inverse t. अब क्वेश्चन ये है कि अपने लोग को जो आंसर लाना है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी लाना है, मतलब टी नहीं होना चाहिए वहां. तो मुझे कोई बता सकता है इसके बाद क्या करना चाहिए. सर माइनस कॉमन ले लेगा, फिर cos inverse t plus sin inverse t. क्या होता है cos inverse t plus sin inverse t? Pi by 2. Check, we have done this in inverse trigonometry that cos inverse x plus sin inverse x is pi by 2. तो अपना आंसर आ गया. dy by dx का जो रिजल्ट है वो क्या है, is independent of t and speed. Is this clear everyone? देखो पहला नंबर रीजन कि मैंने क्यों नहीं a to the power sin inverse t को x से रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x और y में रखते हैं, x क्या है बताओ तो, it is equal to what, function of t, और y क्या है, function of t. लेकिन हम लोग को आंसर क्या लाना है, क्या लाना है हम लोग को आंसर, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब हम लोग को लाना है आंसर dy by dx का कि dy by dx इज इंडिपेंडेंट ऑफ t. तो इसीलिए मैंने क्या किया, रिप्लेस नहीं किया और मैं इसको पहले सिंपलीफाई किया मैंने और देखा कि cos इनवर्स t plus sin इनवर्स t क्या होता है, पाई बाय. तो यहाँ पे हम देख रहे क्लियरली कि कहीं भी आंसर अपना t के टर्म्स में नहीं. ओके, ये तो इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है.
cos inverse x plus sin inverse x is pi by 2. Now the next question is number 8. And question number 8 is x equal to t plus 1 by t whole to the power n and y equal to a to the power t plus 1 by t. और हम लोग को यहाँ पे dy by dx निकालना है, ठीक है? Now let us differentiate x with respect to t. T is a parameter, okay? यहाँ पे t क्या है? पैरामीटर है। तो इस पूरा को t अज्यूम करके और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो t to the power n का। उसके बाद फिर फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ t plus 1 by t। ddt of t is 1, ठीक है? ddt of t क्या होगा? 1 और 1 by t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसको t to the power -1 लिख के फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है? तो ये हो गया -1 by t स्क्वायर। समझ में आया? ddt of t is 1, ddt of 1 by t is -1 by t स्क्वायर, प्लस है तो प्लस इंटू माइनस, ठीक है? यहाँ पे so this is dx by dt. Next is dy by dt. So we have ddt of y, here we have ddt of a to the power t plus 1 by t. ddt of y is dy by dt. यहाँ पे हम लोग a to the power वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a to the power x। see ddt of a to the power t is a to the power t into log a, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पहले इस पूरा पार्ट को अज्यूम करने वाले हैं। ये हो जाएगा a to the power t into log a and then further differentiation of t plus 1 by t। What is ddt of t? Is 1, you know अभी हम लोगों ने किया minus 1 by t square। तो हम लोगों ने देखा dy by dx और dt by dx दोनों मिल गए, dx by dt, dy by dt सॉरी एंड dx by dt दोनों मिल गए। अब हम लोग को निकालना क्या है? dy by dx। So dy by dx will be dy by dt by dx by dt। See ये और ये कैंसिल हो गए। The answer is a to the power t plus 1 by t into log a divided by a into t plus 1 by t to the power a minus 1. This is your answer. All right everyone? 1 minus 1 by t square cancel हो गया, ये बचा by ये। This is your answer. See, you can reduce this. I mean, in one more step. In one more step, you can reduce it by applying x to the power n by x to the power n is x to the power n minus n। तो यहाँ पे a के पावर पे t plus 1 by t है और यहाँ पे a के पावर पे 1 है। इसको तुम लोग a के पावर पे t plus 1 by t minus कर सकते। That is up to you. That is okay. If you want, you can simplify it and reduce. So everyone note down the next sub, that is number 9, number 11. Sorry.
And question number 11 is x equals to a sine 2t. In the bracket you have 1 plus cos 2t. Then we have y equal to t cos 2t. In the bracket you have 1 minus cos 2t. And you have to show that dy by dx at t equals to pi by 4 is b by 4. पहले हम लोग differentiate करें. So here we find that a is a constant, keep it outside. Let us apply UV rule. U dt of 1 plus cos 2t plus v dt of sin 2t. ddt of 1 is 0, ddt of cos 2t is minus 2 sin 2t. This is clear. 1 का 0, cos 2t का minus sin 2t और फिर 2t का डेरिवेटिव 2t. One plus cos 2t. What is ddt of sin 2t? It's 2 cos 2t. इसको जितना हो सके सिंप्लीफाई करना, दैट इज minus 2 sin square 2t. दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो. ठीक है. एक का अब देखो ये भी और सिंप्लीफाई होगा. इन दोनों को मतलब सेपरेट करके और उसके बाद यहां से 2 कॉमन ले लो. तो अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? cos square 2t minus sin square 2t. Now what is cos square 2t minus sin square 2t? Anyone can tell me ये क्या होगा? Yes. What is cos square 2t minus sin square 2t? What is cos square a minus sin square a? Is cos 2a. तो फिर ये क्या हो जाएगा? cos square 2t minus sin square 2t. मतलब इसको a अज्यूम कर लेना. तो cos square a minus sin square a कितना हो जाएगा? cos 2 into a. cos 2 into 2t, that is 4t. अब इसको इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई करके कोई फायदा नहीं. ध्यान रखिए. Now let us find out dx by dt. dy by dt. So for this, let us differentiate y with respect to t. T is a constant, keep it outside. Formula is u. What is ddt of 1 minus cos 2t? Repeat. What is ddt of 1 minus cos 2t? It is 2 sin 2t. समझ में आया? तो 1 का 0, cos का माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और 2t का फर्दर डेरिवेटिव 2 हो जाएगा. cos 2t का हो जाएगा minus 2 sin 2t. ये हो जाएगा. What is 2 sin 2t into cos 2t? Can anyone tell me कि what is 2 sin 2t into cos 2t? क्या होगा बताओ, सिंप्लीफाई करेंगे. 2 sin a into cos a कितना होता है? sin 2a. तो 2 sin 2t into cos 2t कितना बन जाएगा? sin 4t. sin 4t. अब इसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 sin 2t माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t into cos 2t.
वापस से 2 sin 2t cos 2t कितना हो जाएगा, रिड्यूस होकर sin 4t हो जाएगा. What is sin 4t plus sin 4t is 2 sin 4t. एक काम करो तुम लोग यहां तक कॉपी करो, इसके बाद dy by dx निकाल के वैल्यू निकाल दो. So finally, what is dy by dx? So dy by dx will be equal to dy by dt by dx by dy. That is b into 2 sin 4t minus 2 sin 2t divided by 8 into 2 cos 4t plus 2 cos 2. उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है show that dy by dx at, what is the meaning of this at, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं dy by dx at t equal to pi by 4. मतलब जहां पे t है वहां पे pi by 4 लगा दो. मतलब dy by dx निकाल दो, उसके बाद जहां पे t है वहां पे pi by 4 रिप्लेस कर दो. तो अगर हम t की जगह pi by 4 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा sin, what is 4 into pi by 4, 4 into pi by 4 में 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो sin pi बच जाएगा. What is 2 into pi by 4, is pi by 2. समझ में आया, तो जहां जहां t है वहां पे मैंने pi by 4 लगा दिया. ये हो गया cos pi plus 4 into pi by 4 is pi, और ये हो गया cos pi by 2. अब बताना what is sin pi का वैल्यू बताओ. sin pi का वैल्यू कितना होता है, सर बोलो. तो यहाँ से sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगा के फिर cos a प्लस cos b का तो कर सकते हैं ना. मतलब मैं यही बोल रहा था उस समय भी कि करेंगे क्यों, जब हमको वैल्यू लगा के और इसको सिंपलीफाई करना है, क्यों अब इतना टाइम लगा के उसके बाद वापस वैल्यू लगाना ही है, क्यों करेंगे हम लोग. यहाँ पे डायरेक्ट sin पाई का वैल्यू 0 लगा दो, क्योंकि 0 होता है तो 0 into 2 is 0. sin 90 1 होता है, cos pi minus 1 होता है, cos 90 0 होता है. तो अपना क्यों टाइम अपना लोग वेस्ट करेंगे बताओ. जब हमको वैल्यू पुट करना है, हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करना है, क्यों हम टाइम अपना वेस्ट करेंगे sin a minus sin b का. हम लोग को थोड़ी ना ये निकालना है प्रूव दैट dy by dx equal to समथिंग, हमको तो प्रूव करना है dy by dx at t equal to pi by 4. तो डायरेक्ट क्यों अपना टाइम वेस्ट करके उसमें हम लोग cos a plus cos b का फॉर्मूला लगा के sin a minus sin b का क्यों रिड्यूस करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो. ओके. Now the next sum is number 30. Again in number 13 you have to apply the concept of substitution. Okay, you have to apply the concept of substitution here. Okay. कोई बता सकता है कि ये दोनों में लोगों को क्या सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस करना चाहिए. तुम लोगों ने बहुत 5 6 और 7 में किया ही है. क्या बताओ तो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. tan inverse t. हम लोग t की जगह पे tan थीटा लगा देंगे और यहाँ पे भी t की जगह पे tan थीटा. तो हम लोग को सब्स्टिट्यूशन का तो जरूरत ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही है ना. ठीक है, एक ही बात हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं या सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस कर सकते हैं. सो ये फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की जगह पे tan इनवर्स t, डिफरेंशिएट कर दो. ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉरी tan थीटा. तो थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना tan इनवर्स.
And finally, dy by dx will be dy by dt by dx by dt. और दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा? And this is the end of your number 10. I don't think other than these questions you have any more doubt. So all the doubts of number 10 is clear. Okay.